Hi guys, good morning again. For the first class of the RW Foundation. So today we'll start the basics of accounts. So let me start with bookkeeping first. I'll go speedily this thing because I hope you already learned it first year. So bookkeeping means it is the first thing where you record all the transactions in the books of account. So once a transaction happens or once a commodity is selling, a transaction or events happen, then you need to record the same in the books. Then after bookkeeping only, we will do the rest of the parts of accounting. So first step should be to do the transactions of bookkeeping. So let me write. Today class was basic of accounting. Okay. So first thing what I say is bookkeeping. Okay. I'm not giving you any introduction for the account center because you already know. Or if you want, I already said it. Go and check the app. There you can find the fundamental classes. Everything in detail you can find. So first step should be basis of account. We cover the bookkeeping. What I said bookkeeping. Once a commodity and is sold, you need to record the same because why should we record? As a human beings, we don't have that much of memory to memorize each and every transaction, each and every bit. For the purpose of you need to record the transactions. Once you record the transactions, you need to after recording you need to do the accounting. Why accounting? To know the financial positions of finance. See why accounting required. Let me explain you. In today's world, the most thing was that economy. For a economic growth or any business organization, which main aim is to earn profit. For earning profit, you need to do the commodity sale. Then after selling the commodity, you need to calculate the profits. After profit, you need to analyze the financial position. For this handle, we need to know the accounting part. So, what is the definition of accounting? Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing the business transactions. So, it sound little bit. Let me. Okay, sorry. So, it's like accounting. So, once the accounting started, we sell commodity, we need to know the financial position, we need to know the balance sheet. The balance sheet itself shows a financial position. We're calculating profit and loss for the economic growth. See how the economic part I'm telling you. So let's start with our country only, India. I'm taking a best example of our country, India. Okay. So how many of you know the economy of India mainly depend upon business growth. Business growth. So, for stability of economy or for increase the GDP. So, I'll tell you the letter that is the economic class you can know. I'm saying the basics of requirement of this accounting. Why should we require the accounting? In India, the main thing of economy, how economy will grow? Business growth. How business will grow? Like accounting like us, we will help the business to provide good information, good analysis data by taking the transaction which is recorded in the bookkeeping, by preparing the profit and loss account to know the profit, and by preparing the balance sheet to know the financial position. In that financial position, we can analyze that whether our business is growing towards the growth towards the economic growth. So sorry, what is economic growth? You can ask what is business growth. See how directly link these two. Once a business growth started, he tried to sell his goods
to the market. It may be importation, it may be exportation. Once you do the import export rate, there is a duty need to pay to the government. That duty directly going for as a revenue for the government department. Once our business growing speedily, then the vice versa economy will grow. That's why if business growth required, we require the accounting. For that purpose only, to stabilize the economic growth, we need to do a proper business. For doing proper business, each and every transaction should be recorded properly, should be transacted accurately, so that we can know that yes, our business is growing nowadays. So we can analyze these things. For that need required profit. And one more thing, the business growth related to that, which its profit related to his profit. Once his profit was earning properly, in the way the business will grow. In that way, once economy grow, our India becoming a growing country. Okay. For that all the things, the most important was accounting. So for that purpose, we need to know details of accounting. Once any transaction recorded in the bookkeeping, the next should be accounting step. So how accounting, we take the recorded transaction, we make them as an entry that we saying journalize the transaction with chronological order. Why the thing coming chronological order? Because every transaction should be read date by. So there is not a vast concept regarding the date wise record, but why it is required for our safety and for our using of each date easy. Why date easy it will be? If you record each and every transactions in chronological order, means each date wise, once you forget anything, you won't go each and every. You should just mention the date number, pass the bill. You go put the date number, it will reflect the all the transaction details for which number it is. That's why we need to record the transaction as a chronological order. After recording the transaction, the next step should be our ledger. Ledger means you should post the transaction. I'll tell you the one thing once I go for the accounting cycle. Let me start with accounts only. Okay. So this accounts. First will be recording, then here we will do the recording transactional events in journalized ledger, trial balance, preparation of final account. I was telling the story of accounting. It's because the accounts is related to the business. Once a businessman wanted to know the ending of profit and he wanted to know how to end the profit, for that thing proper accounting or proper books of account need to be maintained. So why I'm saying proper books of account, if your data was adequate, if you're preparing adequate data, then it will be easy for you to know the actual profit of the बिजनेस. यस, एक बात और एक मैं आपको बताता हूँ. हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ खिलवाड़ भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मीन्स एक फंक्शन हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारा ओरिजिनल है, और एक हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो कि हम लोग शेयर होल्डर जो इनको दिखाना है कि हमारा पोजीशन ये है और हमारा क्रेडिट वर्दीनेस जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस अच्छा है. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? सो दैट we can earn the believeness and trustworthiness of the customer. अगर हम लोग कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटो ग्रोथ करेगा, क्योंकि दे आर द रियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स फॉर आवर बिजनेस. वी टेकिंग इन्वेस्टमेंट मनी फ्रॉम देम, सो दैट for them we need to show a proper account, books of accounts, where we can properly show that solvent position is good and the credit worthiness of the company also good. For them we need to prepare, we need to do some window dressing in the accounts. That's why accounts was mainly based on the past records, which we can say historical data. So जब भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसके बाद हम लोग एनालिसिस करके पास्ट रिकॉर्ड डाल के हम लोग प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है. सो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए हम लोग का हाथ कितना है. हर कंपनी में आप जाओ, जिस हर एक कॉस्ट अकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी प्रोफेशन है उन लोग का मेन रोल होता है कंपनी का ग्रोथ का. क्यों मेन रोल होता है? क्योंकि उन लोग बहुत हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में. बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग का अपना प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगा,
और हम लोग गुड डिसीजन नहीं ले सकते तो बिजनेस कहाँ ग्रो होगा, वो तो ठप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये सब चाहिए, अकाउंट्स के अंदर ये सब आएगा, ये कौन करता है, एज अकाउंटेंट ये सब करते हैं। तो आप लोग समझ गए होगा आपका स्कोप कितना वाइड है इन फील्ड में। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ आपका, अभी आपको बुक कीपिंग थोड़ा आइडिया हो गया, जो जो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होता है। हाँ, ये दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। बुक कीपिंग जो है वो बस रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच ऑकर। अकाउंट जो है ये रिकॉर्ड होने के बाद इसका बुक कीपिंग का जो भी इनपुट होगा, ठीक है, बुक कीपिंग का जो भी इनपुट होगा, इसका जो इनपुट होगा ये सीधे रिलेटेड होगा अकाउंट्स के लिए। इसका इनपुट, तो बुक कीपिंग का इनपुट लेके हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जिसको बोलते हैं इसका इनपुट जो है, इसका इनपुट आएगा, इससे इनपुट लेकर हम इससे प्रिपेयर करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं जर्नल, लेडजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सो बेसिकली कि कहां से है, पास्ट रिकॉर्ड, ये हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसका रिकॉर्डिंग जो डाटा है उस डाटा को लेकर हम इस पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि बुक कीपिंग का रोल क्या है, अकाउंट्स का रोल है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिजनेस ग्रोथ चाहिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसा आएगा हम लोग एनालिसिस करके प्रॉफिट आएगा। इसलिए आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन ये बोलता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बट मैं और एक चीज ऐड करता हूं, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी सोर्स, और हम इसको बोलते हैं केस और केस इक्विवेलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सो आप लोग आपको पता चल जाएगा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हो गया, फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई क्यों चाहिए हमको, क्योंकि बहुत टाइप होता है, आपको पता है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, इस सब को हम लोग अलग अलग हेड में क्लासिफाई करेंगे, तब भी जाके हमारा अकाउंट ठीक से प्रॉफिट आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट हमको मिलेगा, रियल प्रॉफिट आएगा, और लॉस है वो भी आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन आएगा, कैपिटल कितना है, उसमें हमारा प्रॉफिट क्या है, बिकॉज प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड टू एडेड टू द ओनर्स इक्विटी, बिकॉज एज ए ओनर we need to know the profit and the profit also required for the growth of our business। ठीक है, वो सब आएगा, रिकॉर्ड कर दिए, एनालाइज कर दिए, समराइज। समराइज मतलब क्या होता है, हमारा बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहा है, n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, हमारा n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो ये n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग को क्या करना है, बहुत सारे ऐसा होगा जिसमें हमारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, बट उसका क्वांटिटी कम होगा, बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसका मिसमेच कहते हैं, वो लेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाएगा। तो हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये इतना क्लासिफाइड होगा, एक कैटेगरी में ये ट्रांजेक्शन आएगा, दूसरा कैटेगरी में इसे। तो ये दोनों क्लासिफाइड होने के बाद ये दोनों को हम एक समरी प्रिपेयर करेंगे कि हमारे पास ये कैटेगरी डाटा इतना इतना स्टॉक है, ये डाटा इतना इतना है, इन दोनों डाटा के लिए हम लोग इतना एक्सपेंसेस किया है, हमने इतना सेल किया जिसमें हमको इतना इनकम मिला है, ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारा इसमें से इतना एसेट है, और जब भी हम ट्रांजेक्शन करें उसमें हमारा इतना लायबिलिटी है, फिर वो सब लायबिलिटी दोनों कंपेयर करने के बाद हमारे इनकम एक्सपेंस हम कंपेयर करेंगे, फिर हमको मिलेगा हमारा प्रॉफिट। एक बात मैंने आपको बोला, एनालिसिस, हमको एनालिसिस क्यों जरूरत है, वंस हमारा n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा, वंस हमारा प्रॉफिट आ गया, फिर हम इस प्रॉफिट को लेके इधर लिख लेता हूं, ठीक है, फिर हम इस प्रॉफिट को लेकर हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे इस प्रॉफिट को लेके। सो वंस से प्रॉफिट को लेके हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जब भी तभी क्या होगा, ये सब में आपको दिख नहीं रहा है, वन सेकेंड, लेट मी कम टू लिटिल बिट क्लोजर, ओके, हियर आई एम राइटिंग, ओके। सो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट से हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, सो जो प्रॉफिट आ गया, हम लोग हमारा एसेट लायबिलिटी डाल दिए, प्रॉफिट को ऐड करके कैपिटल आ गया, रिजर्व, सारा कुछ है, पर एनालिसिस का जरूरत क्यों है। अगर हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, तो उसको कहाँ से इन्वेस्ट करना है, अगर कोई न्यू बिजनेस चाहिए या न्यू लाइन ऑफ बिजनेस हम लोग शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा, उन सब डिसीजन का आंसर के लिए
there must be analysis in that current year profit and balance sheet, that is called your profit and loss account and balance sheet, which gives us the financial positions. So if we know the financial position, then हम लोग एनालिसिस करके हमारा फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग हम लोग ले सकते हैं. दैट्स व्हाई मैंने बोला वन इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो क्लासिफाइंग हुआ, फिर समराइजिंग हुआ, फिर एनालाइजिंग हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन. एक चीज मैंने बोला उसमें मनी सोर्स, इसका मतलब ये नहीं बस हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, नहीं, हम लोग कैश भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं, बट क्रेडिट जो है वो इनडायरेक्टली कैश ही है. ऐसा होता है कैश ट्रांजेक्शन हमको सडनली मिल जाता है, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है हम अगर कुछ टाइम पीरियड लेते हैं जिसके बाद हमको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिलेगा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट. लाइक 1-2 महीने हम देते हैं, फिर उसके बाद वो हमको कैश दे देता है. ठीक है, समझ गए? इसलिए मैंने बोला मनी और मनी सोर्स. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. मैंने बस बेसिक ही बताया आपको. अगर ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग साइकिल. इरेज करके मैं अकाउंटिंग साइकिल शुरू करूंगा. ओके, हो गया. मैं इरेज कर देता हूँ इसको. सो अभी शुरू करते हैं हम अपना अकाउंटिंग साइकिल. ठीक है, तो ये कैसे शुरू होगा अकाउंटिंग साइकिल? इसका पहला स्टेप है, पहले हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए. तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या बोलते हैं, हर कोई इवेंट्स या गुड्स जब भी हम सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं, दोनों पार्टी के अंदर जो भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन. सो पहले हुआ ट्रांजैक्शन. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सब्सिडरी बुक होगा. ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सब्सिडरी बुक्स होगा. तो हम लोग सब्सिडरी बुक्स क्यों बोलते हैं? एक बात याद रखिए, सब्सिडरी बुक्स मतलब हमारा, अगर मेनली आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल फील्ड में, एक हमारा होता है मास्टर लेडजर, एक होता है सब लेडजर. ठीक है, सो ये ठीक इसी तरह है. अगर हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, हमको डबल एंट्री ये बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव बीन टू फोल्ड, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट. अगर हर एक ट्रांजेक्शन का दो ही इम्पैक्ट आता है तो हम लोग को दोनों इम्पैक्ट चाहिए ना. अगर मेन लेडजर में एक इम्पैक्ट आया, जो रीजन के लिए मेन लेडजर में वो ट्रांजेक्शन इनपुट आ रहा है, उस रीजन का एक लेडजर होना चाहिए खुद का, उसे बोलते हैं सब लेडजर. जैसे कि आप लोग ले लीजिए परचेज बुक. नॉर्मली परचेज बुक में इतना कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिटर आता है. तो परचेज में क्या होता है, हम गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट आएगा, क्योंकि वो कैश में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अनलेस अंटिल वी रिसीव द कैश फ्रॉम द डेटर्स. दैट्स व्हाई, सॉरी, हम परचेज बोल रहे हैं, मैं गलत कहा. परचेज मतलब होता है हमने पेमेंट करना है, अनलेस अंटिल वी पे टू द क्रेडिटर्स. ठीक है, जब भी हम सेल्स करते हैं क्रेडिट सेल्स में, उसमें आएगा डेटर, अनलेस अंटिल रिसीव द कैश फ्रॉम द डेटर्स. तब तक वो ट्रांजेक्शन कहाँ में बिठा रहेगा, इसमें सब्सिडी बुक में बिठा रहेगा. तो आप लोग का कितना सब्सिडी बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है.
परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। ये चारों को छोड़ के, ये चारों को छोड़ के हम लोग कभी कभी ऐसा होता है परचेज सेल ट्रांजेक्शन में हम लोग बिल पे भी डील कर सकते हैं, मतलब बिल जनरेट करके बिल दे के डील कर सकते हैं। अगर हम लोग सेल किए, अगर हम लोग सेल किए तो हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर आज नहीं 3 महीने बाद मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक जनरेट करेंगे बिल, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक उसी तरह अगर हम लोग परचेज किए, किससे, सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किया, तो हमको उसको पेमेंट देना होगा। तो पेमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक बिल चाहिए, जो कि हम लोग फ्यूचर पीरियड में उसका हम पेड करेंगे, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। इन सबको छोड़कर अगर कुछ अलग सा ट्रांजेक्शन रह गया, सबको बोलते हैं जोर्नल प्रॉपर। हम लोग जोर्नल प्रॉपर क्यों बोलते हैं, एक चीज इसमें भी कॉन्सेप्ट है। तो सब्सिडी बुक में मैंने हम कितना बोला, 2 4 6 ही बोला ना। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। क्या आप लोग को लगता है बस इतना ट्रांजेक्शन होगा दुनिया में? नहीं, एन, मैंने बोला ना एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। इनको छोड़ के बाकी जितना हम लोग ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो उन सबको अलग अलग कैटेगरी, लाइक हम लोग कैरिज पेमेंट करते हैं, फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट आवर, इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हैं, ठीक है, ऑक्ट्री हम लोग पेड करते हैं। इन सबको भी पेड करते हैं, केस में होता है। पर जो केस में होता है वो तो केस में आप रिफ्लेक्ट कर लेंगे, वो तो आपका लेडजर में आ जाएगा। पर उसका जो सब लेडजर है वो तो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जो केस हम लोग दिखा रहे उसके रीजन क्या है, मैं पहले कैसे बोला था, हर एक का रिटर्न, हर एक का इनफ्लो आउटफ्लो हमको पता चलना चाहिए। तो जो केस हम लोग किस वजह पेड किया, तो वो लेडजर हमको चेक करना है, उसी से ही हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं नॉर्मली। मैं आपको बताऊंगा आगे वो कैसे होता है। तो ये आ गया सब्सिडी बुक। वन सब्सिडी बुक हम लोग रिकॉर्ड किए, तो हमको जर्नल भी चाहिए। जर्नल क्यों चाहिए, अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो गया, याद रखिए कुछ ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसको हम लोग पहले जर्नलाइज करेंगे। ये जो सब्सिडी बुक है ना, ये एक पार्ट है बस, ठीक है, ये इतना आपका ये नहीं, तो पर मेन पार्ट क्या आता है ना ट्रांजेक्शन को, ये पहले आपका आएगा रिकॉर्ड, ठीक है, ये आएगा आपका रिकॉर्ड। ओके, सो आप एक सवाल पूछते थे कि विथआउट जर्नल हम सब्सिडी प्रिपेयर करेंगे? नहीं, हमको जो भी करना है रिकॉर्ड के बाद जर्नल ही करना है, फिर जाके लेडजर। सो ये जो सब्सिडी बुक है ना, ये एक पार्ट ऑफ लेडजर ही है, ये एक पार्ट ऑफ लेडजर है। पर डिफरेंस क्या है, ये लेडजर में जो है वो मास्टर लेडजर हम लोग बोलते हैं, जिसके मेन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, उसका जो सब अकाउंट है वो सब आएगा इसमें, और जो जिसको हम बोलते हैं सब लेडजर रिकॉर्ड उसमें आएगा, ठीक है। सो आपको सब्सिडी बुक पता चल गया क्या है, लेडजर पता चल गया। फिर मैं बोलता हूं, हाँ सॉरी, मैं जर्नल जो रिकॉर्ड हो गया, फिर आएगा जर्नल, ठीक है, जर्नल आ गया। तो जर्नल में आपका क्या होगा, मैं साइकिल ड्रॉ करूंगा लास्ट में, आप लोग समझ लीजिए। तो जर्नल में आपका क्या होगा, ये जर्नल जो होगा इसमें हम लोग जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, ठीक है। जब भी ये जर्नल में रिकॉर्ड हो गया वो जाएगा लेडजर में, सब्सिडी बुक में। उसके बाद हम लोग ये जर्नल हो गया, लेडजर हो गया, फिर इसको कहां से लिखे, टीबी में लिखेंगे। टीबी मतलब क्या है, जो बैलेंस आया उसका हम लोग बैलेंसिंग करके डालेंगे कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। ये आपको कैसे पता चलेगा, हमारा 3 गोल्डन रूल है और एक मॉडर्न अकाउंटिंग रूल है, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको इजी होगा किसको किसको डेबिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, किसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, कौन सा ऑलवेज डेबिट रहता है, कौन सा क्रेडिट रहता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये अगर ट्रायल बैलेंस हो गया, हमारा मेन होता है जो है फाइनल अकाउंट। इसमें क्या आएगा, हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस अकाउंट को एज ए बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया पूरा अकाउंटिंग साइकिल। अभी देखो इसका फ्लो कैसे जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जर्नल रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड का पूरा जर्नल हो गया, फिर ये दोनों लेडजर सब्सिडी बुक में जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अब इसका हम फ्लो डालते हैं, इसका अकाउंटिंग में फ्लो कैसे आएगा। तो पहले समझ लीजिए हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, तो जो ट्रांजेक्शन हो गया उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। देन
ये जर्नल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पोस्ट देम इनटू द लेडजर। ठीक है, वन जर्नलाइज हो गया, हम उसको पोस्ट करके कहा, लेडजर में। ये लेडजर जो है ये इसमें दो रहेगा आपका। ठीक है, ये मत सोचना है, इसके एक आता है मास्टर लेडजर जिसको कहता है मेन लेडजर, और एक आता है सब लेडजर। ठीक है, एक आता है मास्टर लेडजर, एक आता है सब लेडजर। ठीक है, सो वन जर्नलाइज हो गया, फिर इनटू पोस्ट लेडजर हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इसमें जो बैलेंस आएगा, जो लेडजर करने के बाद हम लोग जो बैलेंसिंग करते हैं, जो बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो भी आएगा, ब्रॉट इन ब्रॉट आउट, जो भी हमारा आएगा बीएफ और सीएफ, उसको हम लोग लेके डालेंगे कहां पे, बैलेंसिंग पे। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि एक लेडजर वो डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। पता चलने के बाद हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में एक ऐसे समरी डाल देंगे। यह क्या होगा, ये बहुत फास्ट होगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा अकाउंट होगा, एक एक टी फॉर्म में कितना बहुत सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। पर लेट्स एक एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसका क्यों हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं। लेट्स एक ले लीजिए केस अकाउंट। ठीक है, हम ये केस लेटर प्रिपेयर करते हैं, इसमें यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आएगा, इसमें भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आएगा। तो ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो केस कौन सा अकाउंट होगा आपका, लिक्विड पोजीशन है केस। तो कौन सा अकाउंट आपका आएगा, तीन अकाउंट है हमारा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो केस आपका आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग इसको जितना जितना हम लोग रिसीव किए सारा डेबिट आता है, जितना जितना क्रेडिट किए सारा क्रेडिट आता है। और यहाँ का फ्लो कैसा आएगा, देखो सपोज हम लोग रेंट पेड किए या केस दिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट टू केस अकाउंट। ये सही है पेमेंट का, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, तो डेबिट किया, ये हमारा पैसा गया, तो क्रेडिट किया, रेंट टू केस, तो ये केस है, तो यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे आएगा रेंट अकाउंट। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर केस इनफ्लो होता है तो हमारा सारा ट्रांजेक्शन इस एरिया पे आएगा, अगर केस आउटफ्लो होता है तो सारा इस एरिया, मतलब इनफ्लो हो गया तो डेबिट साइड आएगा, आउटफ्लो हो गया तो क्रेडिट साइड आएगा। ये तो आपको पता भी होगा, मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इतने सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस में डालेंगे, एक एक को ढूंढ के डालने का प्रॉब्लम होगा, हमको टाइम टेकन भी होगा। तो इस सब का एक समरी होगा, हम इस सब बैलेंस को लेके, ये इनफ्लो बैलेंस है, ये आउटफ्लो बैलेंस है। ठीक है, सो इनफ्लो बैलेंस और आउटफ्लो बैलेंस को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। अगर हम लोग इनफ्लो ज्यादा हो गया तो आपको क्या लगता है, डेबिट बैलेंस ही होगा ना, कंफर्म। एक चीज याद रखिए, अगर ये इनफ्लो हुआ तो डेबिट हो रहा है, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो हमारा ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होगा। हमारे पास कैश है, जितना हम लोग स्पेंड किए उससे ज्यादा हमारा सेविंग है, तो हमारे पास जो बैलेंस ही है, तो इसलिए इसको बैलेंसिंग का एक, इस दोनों को करेगा, एक ही फिगर हमारा आएगा। उस फिगर को हम लोग डालेंगे कहाँ पे, सिंगल फिगर, इतना सारा नहीं करके एक ही फिगर हमको डालना है कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में तो ये क्या हो गया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को लेके उसको कैलकुलेशन करके उसको बैलेंसिंग करके, बैलेंसिंग करने में जो सिंगल फिगर आएगा उस सिंगल फिगर को हमको डालेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो आपको समझ गया ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर होता है, इसको इसलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। जो जो बैलेंसिंग आया वो बैलेंस को उठाओ, उठाकर डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड डाल दो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड डाल दो, दोनों बैलेंसिंग आ गया। हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस हमेशा आपका टैली होगा, डेबिट क्रेडिट। कभी भी आपका ये नहीं आएगा कि वो बिन टैली होकर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है आपका कुछ तो कुछ एरर है लेजर प्रिपरेशन में या जर्नल प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस वंस प्रिपेयर करते हैं, आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, मैं लास्ट स्टेप को यहां से खींच लेता हूँ। ठीक है,
आपका लास्ट स्टेप क्या आएगा? लास्ट स्टेप आएगा बैलेंस शीट। इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? देखो ये एक स्टेटमेंट है जो कि हर ईयर का एंड में प्रिपेयर होता है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली गलत है। हम लोग सिर्फ ईयर में प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट? नो भाई, हम लोग जब भी चाहे तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी चाहे हम लोग डाटा है उसका हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे हम ट्रायल बैलेंस ले सकते हैं, उससे हम बैलेंस भी ले सकते हैं। बट एज ए रेगुलर प्रैक्टिस एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको बताऊंगा। जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है उसके बेस पे हर एक का बैलेंस प्रिपरेशन ईयरली वंस होता है। ठीक है, ईयरली वंस होता है। तो हर ईयर का ईयर एंड में हम लोग बैलेंस प्रिपेयर करते हैं एज पर ईयर बुक्स। तो बैलेंस ईयर में प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम लोग क्या पता चलेगा? हमारा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का स्टेटस क्या है और हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसमें बैलेंस में हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस बैलेंस शीट में ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट। तो हाँ एक बात, तो ये बैलेंस शीट हम लोग डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम लोग ये बैलेंस शीट डायरेक्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जो मेन प्रॉफिट है वो मिसिंग रहेगा। अगर प्रॉफिट मिसिंग रहा तो ओनर्स इक्विटी भी मिसिंग रहेगा। अगर ओनर्स इक्विटी मिसिंग रहा, प्रॉफिट में हम लोग शेयर होल्डर का कैसे हम लोग डिविडेंड पे करेंगे, डिबेंचर में इंटरेस्ट, सब तो प्रॉफिट्स में जाएगा ना। जितना हमारा एक्सपेंस सारा प्रॉफिट होने के बाद जाएगा ना। तो इससे पहले हम लोग को ये अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद ही हम लोग बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। सो ये दोनों को कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ये दोनों कॉम्बिनेशन में हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। गॉट माई पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपका जो मैं बताया ये सारा फ्लो है। आप जब आगे आगे क्लास में जाएंगे ये फ्लो में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जर्नलाइज कैसे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा लेडजर, फिर हम उसी से ट्रायल बैलेंस एक ही साथ प्रिपेयर करेंगे। अभी ऐसा नहीं कि अलग अलग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे। इसमें ये साइकिल एंड हो जाता है। पर मैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड करता हूं। अभी देखो ये साइकिल यहाँ पे एड नहीं होता है, कभी भी ये साइकिल यहाँ पे एंड नहीं होता है। ये साइकिल कहाँ एंड होगा? जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दें। ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद हम इसमें कुछ एनालाइज छेड़खानी करेंगे, एनालिस करेंगे। कि क्यों एनालिस करेंगे? जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन आ गया उस फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग को ये देखना है कि फ्यूचर ग्रोथ हमारा सही है कि नहीं। हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग लेके अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारा कुछ डिटेल रहता है, या कुछ न्यू बिजनेस लाइन में शुरू करेंगे, लाइन में बिजनेस शुरू करेंगे या नहीं, वो सब हम लोग डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन के लिए हमारा ये अकाउंट बहुत जरूरी है। एक चीज, ये जो अकाउंटिंग है ना, ये यहाँ पे एंड हो जाता है। ये सब यहाँ पे एंड हो जाता है। जो डिसीजन मेकिंग के लिए वो दूसरा और एक अकाउंट मैं बताऊंगा जब भी मैं आपको क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, ब्रांच ऑफ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये एंड होने के बाद यहाँ पर डिसीजन जो लेंगे वो हम लोग शेयर होल्डर, जो डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर इतना मेनली जो होता है शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर, क्योंकि उनका पूरा राइट है कंपनी का। हमारे कंपनी का जो शेयर उनके पास है, तो उनका राइट है जानने कंपनी का क्या है पोजीशन। हम लोग दिखाना है उनको, स्टेटमेंट करके हम लोग देंगे कि ये पोजीशन है, ये आपके लिए है, और इस ईयर का हमारा कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो स्टेटस, जो प्रॉफिट या लॉस स्टेटस ये है। तो हम लोग इसमें इसी करने के बाद हम लोग बताएंगे। नॉर्मली प्रैक्टिकल क्या होता है सुनो, ये बहुत बढ़िया चीज है। प्रैक्टिकल में हम लोग डाटा डाले, ट्रांजेक्शन हो गया, फिर हम लोग छेड़खानी करके लेडजर करके और डायरेक्टली हमको बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस दिखा लेगा। तो जब भी आएगा हम लोग कितने परसेंट श्योर है, एक्यूरेट है कि वो सब सही है? कितने परसेंट? कभी नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग we all are doing mistake, we all are made mistake, because mistake made for the best only। एक चीज है mistake made for the best। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब प्रिपरेशन करने के बाद हम एक रिकंसिलेशन करते हैं लेडजर सब लेडजर को, कि ताकि अगर कोई कुछ आइटम है जो कि नहीं गया, कुछ आइटम जो स्टिल बैलेंस स्टैंड कर रहे हैं, जिसके लिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है क्लियर अप करने के लिए, वो सबको हम लोग एनालिस करना है। तभी जाके वो एनालिस होके, वो आइटम क्लियर होके,
तभी जाके आपका ये बैलेंसिंग जो है ये क्लियरिटी आएगा. Unless until the open item transaction standing in the books of account, you can't say it is a good balance sheet. Keep in mind always, अगर कुछ भी ओपन आइटम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है जो कि ईयर एंड में आपका वो आइटम खत्म क्लियर नहीं होता है, अकाउंट से क्लियर नहीं होता है, मतलब आपको कैश नहीं मिला है या आपका कुछ रीजन है या आप लोग का कुछ आइटम है जैसे कि हमको रिकवर करने में दिक्कत हो रहा है, वो सबके लिए डिसीजन लेके कन्वर्ट करने के लिए सारा डिसीजन अगर क्लैरिफाई नहीं हुआ तब तक ये जो बैलेंस शीट है ये आपका बैलेंस शीट सही नहीं है. आप लोग एज्यूम्शन ही ले सकते पर परफेक्ट नहीं कह सकते. इसलिए मैं बोलता हूँ हमको इसके बाद रिकंसिडर करके हर एक आइटम का बारीकी चेक करना है. ईच एंड एवरी आइटम नीड टू चेक whether that item stands in the books. If any item stands in the books unclear, जो कि एक बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है पर अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है, अगर वो आइटम क्लियर नहीं हुआ है तो हमको उस पर एनालिसिस करना है. इसलिए मैंने लास्ट में बोला एनालिसिस पर, उस पर एनालिसिस करके उसका प्रूफ ला के उसका रीजन लेके हम लोग को दिखाना है. अगर आपके पास हर एक आइटम का रीजन है जो कि बैलेंस शीट का फुट नोट लेते, पर ये बात एक याद रखिए आप, अभी क्या हुआ ना, पहले जब भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसमें हम लोग बैलेंस शीट डाल देते, बैलेंस शीट में नीचे नोट्स पे लिख लेते हैं ये नोट्स है. पर अभी जब भी इंडिसेस और आईएफआरएस आया अमेंडमेंट के हिसाब से, जब भी आप बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स में, उसमें आप लोग का नोट्स अलाउ नहीं है. ये याद रखिए, पहले आता था अभी नोट्स अलाउ नहीं है, क्योंकि नोट्स लिखना सबसे बड़ा गलत है. क्यों, ये कैसे आया, आईएफआरएस ये बोलता है कि जब भी हम लोग कुछ प्रिपेयर करते हैं हम लोग को एक्यूरेट डाटा चाहिए. अगर वो डाटा नहीं है, हम लोग नोट्स पे नहीं लिखते, नोट्स उसको हम लोग डिसीजन लेके इधर उसके लिए हम लोग कुछ प्रोविजन क्रिएट करेंगे या उसको क्लियर करने के लिए कुछ डिसीजन लेंगे. ऐसा नहीं कि हम लोग डाल दे बुक्स अकाउंट, वो बिठा दिया अमाउंट और उसको हम लोग ले रहे लिख लेंगे तो नोट ये है इतना रिकवर हुआ, ये रिकवर नहीं हो रहा है. नहीं, अभी उसको हम नहीं लिख सकते. अभी जो करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो हम like trial and error, maybe, may not be, no, it should be or must be. Every transaction there should be a clear cut reason, or you should account the same as in the books of account, so that your balance sheet should be called as a perfect balance sheet and you will get full marks on that. Keep in mind these things. ओके, यू गॉट माई पॉइंट. सो आप लोग को मैंने अकाउंट साइकिल बता दिया, बैलेंस शीट बता दिया, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट ये दोनों आता है, और बैलेंस डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, हम लोग का एनालिसिस कैसे होता है. ये है आपका पूरा अकाउंटिंग साइकिल. एक बार मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन लेडजर आप चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं इसको. फिर मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स. मैं दो एक मिनट नोट कर दीजिए. हो गया, ये हो गया आपका. अभी हम लोग शुरू करेंगे का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, ये मेरा आज का लास्ट क्लास होगा. फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, सीधे शुरू करेंगे. ठीक है, चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और हम उसको बेसिक अकाउंट लास्ट क्लास में होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच ऑफ अकाउंट हमारा लास्ट क्लास है. ठीक है, तो ये होगा अकाउंटिंग साइकिल. फिर मैं आपको बताता हूँ बेसिस ऑफ अकाउंट्स. ये बेसिक मैं बताऊंगा, बेसिस. ओके, बेसिस ऑफ अकाउंट.
नॉर्मली एज पर बुक्स के हिसाब से जाए आपको 3 बेसिस आते हैं। एक आता है केस बेसिक्स, एक्यूरल बेसिक्स और एक है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड और मिक्स बेसिक्स। ठीक है, सो पहले मैं शुरू करता हूँ। ये आता है आपका एक्यूरल बेसिस, फिर आपका आता है केस बेसिस, फिर आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, सो ये तीनों में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत प्रिपेयर करते हैं, केस और हाई मिक्स, बोथ केस एंड एक्यूरल। ये क्यों प्रिपेयर मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के बस चलता हूँ, इसको हार के बोल देता हूँ। एक्यूरल बेसिक्स क्या होता है, मैं जैसे आपको पहले बताया, हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करते हैं, ठीक है, और कैश ट्रांजेक्शन भी करते हैं। एक्यूरल बेसिक्स ऐसा है, once a transaction or events happen, whether it's realized or not, it should be considered in the books of accounts for the same year ended। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन किए, उसमें हम लोग को अभी कैश नहीं मिलता है, कैश रियलाइज होगा बाद में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो ध्यान से। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है कब, नॉर्मली 31 मार्च को। ठीक है, तो जब भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, हमारा एक ट्रांजेक्शन हो गया एक्यूरल बेसिस का, जान ले लेते नहीं जान फेब, ठीक है, 15 फेब जो कि हुआ है ट्रांजेक्शन, ये हुआ है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये हुआ है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसका कितना है 3 मंथ्स पीरियड है। ठीक है, 3 मंथ्स पीरियड है क्रेडिट, कितना 3 मंथ्स पीरियड है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बुक्स अकाउंट कभी क्लोज होता है 31 मार्च को, ट्रांजेक्शन कब हुआ 15 फेब को। क्या ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, इसमें हम लोग कुछ कैश मिलता है कि नहीं मिलता है, पर ये भी हमको बुक्स पर दिखाना है। कैसे दिखाना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरल, जो कि आउटस्टैंडिंग है as on the date of preparation of books of account. Any transaction or events happened, whether it's realized or not realized, but the date the transaction happened should be considered as the transaction date। ये बात याद रखिए, जो डेट में हमारा ट्रांजेक्शन हो, ये 15 फेब को ट्रांजेक्शन हुआ ना, इस डेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन डेट। इस डेट में हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे एज ए आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड लॉन्गेस्ट में एक्यूरल ट्रांजेक्शन, और हम लोग बोलते हैं एक्रूड एंट्री, उसका हम लोग बोलते हैं क्या, एक्रूड एंट्री। सो उस ट्रांजेक्शन हम लोग एक्रूड करेंगे और एक्रूड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग 15 फेब को क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए, उसमें हमको कैश नहीं मिलेगा, वो हमारा 3 मंथ पीरियड है, तो इस महीने में हम लोग का इतना डेट में ये इतना आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमारा टोटल लाइबिलिटी है। एक बात इसमें याद रखिए, अभी मैं पहले आपको बोल रहा था कि अभी नोट्स नहीं चाहिए, हर एक का हमको डिटेल चाहिए। तो 15 फेब है, मिलेगा कब, 3 महीने, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई 15, राइट, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई 15 होता है ड्यू डेट। सो द मनी विल बी रिकवर इन मई 15। तो हमारा बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हमको ध्यान से करना है कि इस ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कितना दिखाएंगे।
जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना दिखाएंगे और जो अदर अमाउंट है वो कितना दिखाएंगे। ये आएगा आपका इसमें, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग ट्रीटमेंट कर, ये ट्रीटमेंट बात बताऊंगी, बस पता चलना चाहिए कि एक्रूअल बेसिस क्या है। एक्रूअल बेसिस जो होता है एनी कमोडिटी ट्रांजैक्शन हैपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट whether realized or not, but we need to consider the same in the record of in the for the purpose of preparing the balance sheet trading P&L account। ये आपका एक्रूअल बेसिस, ठीक है। और इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल के, उसका अंदर मैं हर एक चीज का डेफिनेशन और हर एक को रीजन के साथ बताऊंगा उसको हम लोग क्यों ट्रीटमेंट करते हैं। मैं पहले ही पता था, अगर कुछ भी बताऊंगा उस सबके लिए कौन सा है कॉन्सेप्ट कन्वर्जन तीसरा, हर एक बेस में ये सब होता है, ठीक है। तो अभी आपका एक्रूअल बेसिस पता चल गया। केस बेसिस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मतलब, और गलत भी बहुत ज्यादा है इसमें। ये बहुत बेकार का बेसिस है। क्या बेकार का बेसिस क्यों है? ये दोनों बेकार है। अभी देखो एक्रूअल बेसिस में हम लोग बस एक्रूअल रहते हैं, केस बेसिस में those transactions which only realizable cash as on the date of preparation of books of account। हम जिस डेट में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस डेट में हम लोग को जितना ट्रांजेक्शन रियलाइज हुआ है उसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन इंटरेस्ट हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस बस कैश से डील करता है, उसमें कैश भी आएगा क्रेडिट भी आएगा, पर हमारे पास क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये बेसिस, केस बेसिस अकाउंटिंग। सबसे अच्छा बात ये दोनों, इसमें क्या आएगा, हम लोग दोनों पेपर करते हैं, बोथ केस एंड एक्रूअल बेसिस, ये दोनों हम लोग पेपर इसमें। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स और हाइब्रिड। ये सबसे अच्छा क्योंकि इसमें हम लोग बोथ अकाउंटिंग का बोथ एक्रूअल बेसिस का और केस बेसिस दोनों ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हम लोग को दोनों का हमारे पास आइडिया रहेगा, नॉलेज रहेगा कि यस we have done this much of credit transaction which is accrued or outstanding for the period, we have done this much of cash transaction which are already recovered or realized cash as on the date of happening the transactions। Got it? So this is your of basics of accounting, ठीक है। अभी बेसिक अकाउंटिंग आपको थोड़ा समझ में आ गया। फिर मैं आपको चलता हूँ कौन सा लास्ट है आपका आज का, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और हम लोग इसको ये भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो इसमें 3 कैटेगरी आता है आपका। एक आता है जो आप लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सो ये वाला चीज जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन सेम टू सेम। इसके बाद ये चीज जो है इसको हम लोग बोलते हैं अलग लैंग्वेज से कंट्रोल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, कंट्रोल अकाउंटिंग। इसको हम लोग कंट्रोल अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, इसका मेन थिंग है, अगर हमारा जो बिजनेस हो रहा है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होके सोल्ड होता है अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए, उसका जो जो कॉस्ट इनकर्ड होता है, अगर हम उस कॉस्ट को या उस एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली लॉस में जाएगा, डंप हो जाएगा बिजनेस पूरा। इसलिए उसके लिए हमको
परफेक्ट डिसीजन लेना है, कितना कॉस्ट इनकम होगा, उसके लिए कितना एक्सपेंसेस होगा, मार्केट की सेल के लिए आफ्टर सेल सर्विस कितना होगा, कौन सा अमाउंट लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, किस किस से परचेज करेंगे, हमको सस्ता आएगा रॉ मटेरियल, किस किस को सप्लाई का हम भेजेंगे तो मार्केट चलेगा, मार्केट कंडीशन कैसा है, सारा का सारा डिसीजन कहाँ पे होता है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में। और इसको मैं ये आपका सब्जेक्ट में भी है, 20 मार्क आता है, उसमें आपको पता चलेगा फंडामेंटल कॉस्ट जिसमें आएगा, कॉस्टिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, cost accounting, cost principle, methods of costing, everything will cover in this costing topic. अभी ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये लास्ट, ये क्या है, ये है डिसीजन मेकिंग, दोनों का बाप है ये, ठीक है। कैसे दोनों का बाप है, हम लोग प्रिपेयर कर लिए, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देंगे, बस हमारा फाइनल पोजीशन ये है। फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, ठीक है। एनालिसिस करके क्या करेगा, उसके ऊपर डिसीजन लेगा, उधर हम लोग गोइंग फॉरवर्ड प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग कुछ रहेगा उसके लिए। ये इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये आपको रेशियो करके उसको एनालिसिस करेगा, या स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या बजटिंग प्रिपेयर करेगा, वो डिसीजन सारे डिसीजन कवर है। वो तो अभी आपको नहीं चाहिए, अभी ये दोनों चाहिए। अभी ये डिसीजन में आप पढ़ेंगे, आपकी नेक्स्ट आई गेस इंटर में आपका है, पूरा पेपर आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिसीजन लेगा, ठीक है। इस तरह कॉस्टिंग, ये क्या करेगा, बॉस मेरा ये कॉस्ट प्रिपेयर किया हो, इतना कॉस्ट हमारा आता है, इतना हमारा एक्सपेंसेस है, इतना हमारा फैक्ट्री कॉस्ट इनकम होता है, इतना हमारा मार्केटिंग कॉस्ट इनकम होता है, इतना अपना एडमिन कॉस्ट इनकम होता है, इतना डायरेक्ट मटेरियल लगता है, इतना डायरेक्ट लेबर लगता है, ये सब मिला के हमारा कॉस्ट इतना आता है, उसमें से हमारा प्रॉफिट इतना आएगा, ये बोलेगा आएगा। ये बस ये तो पास्ट रिकॉर्ड, ये डिसीजन, ये आपको पता है, एक प्रोडक्ट देगा, न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए प्रिपेयर करेगा, उसका कॉस्ट कितना है, कितने में सेल होगा, उसका प्रॉफिट हमको कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, ये डाटा देखिए, उसको डाटा के बेस में ये डिसीजन लेंगे, उनके टेक्निक यूज करके। इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं कॉस्ट जो होगा कंट्रोल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल डाटा में पास्ट डाटा प्रिपेयर कर सकता है। आई होप आपको पता चला। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्लास है, इंक्लूडिंग बोथ फाइनेंशियल पार्ट एंड कॉस्टिंग पार्ट, वो अप्रोक्सीमेटली 50 क्लास होगा, ठीक है। सो 50 क्लास में मैं पूरा आपका सिलेबस कवर करूंगा, इंक्लूडिंग आपका जो प्रैक्टिस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग क्लास। सो मेरा जो भी क्लास है, टोटल मैं 7 क्लास करूंगा। हर 7 क्लास खत्म होने के बाद एक क्लास आपका लाइव मिलेगा, जिसमें आप लोग अपना जितना भी डाउट है, सब के सब आप लोग उस दिन मुझसे बात करके फेस टू फेस क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। ये है मेरा प्लानिंग। तो हम लोग जो 50 क्लास करेंगे, ये आज का पहला क्लास है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग जो शुरू करेंगे, आपका खत्म हुआ कहाँ से, सब अकाउंट में खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, उसमें फिर हमको पढ़ेंगे अकाउंट की इक्वेशन, अकाउंटिंग स्टार्ट डेट, और हम लोग धीरे धीरे जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, और उसमें मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल जो है, वो भी सब दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।